और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वेदिका एंड आज की वीडियो होने वाली है मेरी नीट 2024 जर्नी वीडियो। सो आई एम गोइंग टू let you all know what all I experienced, and also stay tuned till the end of the video because I will be sharing some tips and tricks that would help you in this journey. So let's get started. A small disclaimer before we start the video: I am not that perfect student. Like, I don't have a perfect neat journey. So while you watch the video, please keep this in mind. So let's begin. So I did my schooling from one school only, from kindergarten to class 10th, and unfortunately my school did not had that medical field in 11th and 12th, so I had to leave my school. It was a horrible experience to witness. All my friends were at one place and I was at other. Fortunately, one of my friends from the school also took the medical field, so we both were together in this journey. That feeling of leaving the school and going to another place while all your friends are at one place, this feeling was honestly very difficult to cope with. I used to feel so left out. Like, they used to enjoy, they used to have fun, they used to go on trips, and I was at one place, just at one place, stuck at one place. I lost a lot of friends in that journey. I came to know the real faces, and that was very heartbreaking for me. This thing had really bad impact on my mental health. So 11th की जर्नी की बात करती हूँ. सुना था like 11th 12th is a total different thing, and I experienced that. 10th तक things are easy. 11th में आके there is a sudden change of everything. It gets tough and it was really very tough for me. So मैंने institute join किया and touchwood my biology was really good during my entire 11th and 12th. Physics और chemistry में chemistry was still okay. Physics was रियली बैड. सच में क्लास में जाते थे एंड सर पढ़ा रहे होते थे, बोर्ड पर लिख रहे होते थे, एंड आई वॉज मेकिंग नोट्स एज वेल, बट अंदर ही अंदर ना आई यूज्ड टू फील सो हैवी दैट ओ शिट, मुझे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग, आई एम नॉट एबल टू गेट एनी थिंग इन टू माई माइंड. एंड I don't know you guys will believe or not, but I had felt this feeling every single day in my entire 11th for physics. ऐसा होता था कि मेरे को क्लास में कुछ समझ नहीं आता था. लेक्चर में नोट्स बनाए, उसके बाद घर आकर यूट्यूब से समझा, नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक लेक्चर्स के नोट्स बनाए, फिर घर आके समझा. सो रिविजन करने का टाइम ही नहीं मिला, एंड दैट वॉज वेयर आई लैग्ड, वेयर माई 11th physics got off my hands. You know, I could not digest this fact that I was at this stage in my 11th. Class 10th तक ना मैं टॉपर रही हूँ स्कूल की. Like 10th तक मेरा लेवल ये था, and 11th में आके it went to the lowest that I could ever have in my life. When you are in a journey like this, बहुत competition होता है आपकी क्लास के खुद में बहुत कंपटीशन होता है. देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड यू. जैसे एक फिजिक्स के लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन दिया सर ने, पीपल अराउंड मी यूज्ड टू सॉल्व दिस एंड आई वाजंट एबल टू सॉल्व. सो आई यूज्ड टू फील सो लो दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव जॉइंड इंस्टीट्यूट एट दिस पॉइंट और उनको ठीक लग रहा होगा, वेल एंड गुड, very good, but I was the one who wasn't able to adjust. I was just going with the flow and यही सोच रही थी कि ठीक है, हो जाएगा. My 11th class has been the most traumatic year of my entire life because it had been so bad for my mental health, for my physical health. मैं इतना रोई कभी नहीं हूँ अपनी लाइफ में जितना मैं 11th क्लास में रोई हूँ, और इतना कभी मेरी फिज़िकल हेल्थ ख़राब नहीं हुई जितनी मेरी 11th में हुई है. सो यू कैन अज्यूम व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू. एट द एंड ऑफ 11th मेरे को बायोलॉजी 100% आती थी एंड केमिस्ट्री 75% आती थी.
फिज़िक्स में आई थिंक आई वाज स्टिल ऑन द लोअर साइड, वेरी लोअर साइड, बिकॉज आई हैडंट रिवाइज्ड इट. इंस्टीट्यूट में आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं. इस टेस्ट के टाइम पर भी ना मैं कंसेप्ट को समझने में टाइम लगा रही थी, रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था. सो आई ऑलवेज स्कोर्ड लेस. आई मेड फ्यू मिस्टेक्स that I am going to tell you further in this video. तो 12th में ना मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि जो गलती 11th में करी है वो मैं नहीं करने वाली हूँ. मैंने day 1 से ही फिज़िक्स की ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी. The syllabus went simultaneously. मतलब 12th के स्टार्ट से फिज़िक्स में I had a good hand. And otherwise also, 12th is comparatively easier than 11th. So I was finally feeling light after an entire year of a lot of things, a lot of feelings. I think October end में I realized मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है. हमेशा ऐसा ही होता है. If you have a strong hand in physics, you will have a little weaker hand in chemistry, and if you have strong in chemistry, you will have a weaker hand in physics. So यही हुआ मेरे साथ 12th में भी. So October end में I took a step. I left institute and I joined tuition, and I used to give extra time, 2 or 2.5 hours I used to give to this subject every day. Because मैंने institute छोड़ दिया था तो मेरा मॉर्निंग टाइम फ्री हो गया था. उस टाइम मैं फिज़िक्स और बायोलॉजी रिवाइज करती थी, एंड इवनिंग टाइम में मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन जाती थी. I gave my 12th boards. It went really well. I scored really well. And उसके बाद टाइम था नीट का. मैंने कोचिंग दोबारा ज्वाइन की. इनिशियली ऐसा था कोचिंग में कि स्टार्टिंग के कुछ दिन थे मेरे 11th के टेस्ट, उसके बाद 12th के थे, एंड उसके बाद फुल मॉक टेस्ट थे. सो 11th के 1 से 2 टेस्ट मैंने दिए. And I used to feel so bad. I used to get so demotivated घर आकर कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था, because I knew what I did in the paper, and what I did in the paper was not something that I was supposed to do. मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 11th के टेस्ट्स नहीं दूँगी, and I decided कि जितने टाइम 11th के टेस्ट हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, उतनी ड्यूरेशन में मैं अपना 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी. I'll be very honest, I did hardly 4 to 5 chapters 11th की फिज़िक्स के before giving my NEET exam. 12th के सारे टेस्ट मैंने दे दिए थे. उसके बाद टाइम था फुल मॉक टेस्ट का. वो ऐसा टाइम था जब मुझे लगा कि यार अभी भी मुझे नहीं आता है, लाइक अभी भी मैं एग्ज़ाम में बैठने के लायक नहीं हूँ. मैंने और भी बड़ा स्टेप लिया. आई थॉट इन माई माइंड कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दूँगी. मतलब माई फैमिली वॉज ऑल्सो कि नहीं, यू शुड गिव द टेस्ट एंड ऑल दैट. सो देर वॉज अ कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन माई थाट्स एंड द रियलिटी. आई स्टिक टू द डिसीजन कि मैं कोचिंग तो नहीं जाने वाली. What few papers at home I did that. तो ये सब हुआ, एंड लास्ट के टाइम में I gave my best in doing रिविजन्स की. थोड़ा मतलब 1 हफ्ता रह गया था शायद, एंड आई हैड टू रिवाइज. सो आई जस्ट गिव माई फुल टाइम. सो माई नीट एग्ज़ाम डे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई थिंक मैं 6 बजे उठ गई थी सुबह. कुछ रिविजन्स करनी थी, ऐसा भजन वगैरह सब सुने, एंड बिकॉज इट वुड गिव मी पीस. वो एक हाई एनर्जी वाले सॉन्ग्स टाइप होता है ना, वो सुने कि थोड़ा जोश आए एंड ऑल दैट. आई वेंट टू गिव द एग्ज़ाम, एंड मैंने टोटल 670 665 ऐसा कुछ मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया था. एंड आई केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल विद अ स्माइल कि मैंने सिर्फ फिज़िक्स की 11th की फ़िज़िक्स के 4 से 5 चैप्टर्स किए, एंड फिर भी आई डिड well. I think I did well. So I came out of the hall. I was having a smile. My parents saw me. They were very happy. They hugged me. So मेरे को था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही मार्क्स चले जाएंगे अगर गलत हुए. 50 मार्क्स चले जाएंगे. So I was expecting कि ठीक है 610 के अराउंड I'll be getting. बट फिर मैंने आंसर की चेक करी, एंड आई केम टू नो कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो और जब आप आंसर की देखते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है.
The score that came in front of me was 555. I was so heartbroken कि approximately 100 marks का I have done wrong. And मैं बहुत रोई उस रात को भी. So that was my entire NEET journey. I did a lot of mistakes and I have few suggestions for you all that I'm going to tell you now. First mistake I made was not listening to my inner self. मुझे ऐसा लगता है अगर आप 11th में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, वेट फॉर 2 to 3 months. अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, ऐसा नहीं आप ट्राई ना करो एंड यू विल बी लाइक नहीं समझ आ रहा. यू हैव टू ट्राई, डाउट्स पूछने जाओ. अगर फिर भी कोचिंग में नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ प्लीज़ जस्ट लीव इट. अगर आज मैं 11th और 12th में प्योरली ट्यूशन्स जाती एंड 11th के एंड में और 12th के एंड में टेस्ट सीरीज़ देती, तो शायद आज मेरा स्कोर 50-55 प्लस मार्क्स होता. आई फील दिस वे. सो अगर आपको 2 to 3 months में 11th में ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो छोड़ दो. जॉइन अ गुड ट्यूशन जहाँ पे competitive एग्जाम्स का भी प्रेपरेशन हो. आई स्वेयर यू विल बी सो हैप्पी. नहीं हो रहा है, छोड़ दो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 1 drop year. सेकेंड थिंग जो आई थिंक हर एक स्टूडेंट करता है, डू नॉट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, बिकॉज उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है. यू आर फॉलोइंग some other ways according to your comfort. They are following some other ways according to their comfort. आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए. अगर आज आपके टेस्ट में 560 मार्क्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको उन 560 मार्क्स से compete करना है, उससे आगे आना है. एंड दैट इज़ अ की टू योर ग्रोथ. नेक्स्ट, नीट के एग्ज़ाम से 2 months या एटलीस्ट 1 month पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि एक पूरा महीना आपके पास रिविजन के लिए हो. रिविजन इज़ द की टू दैट क्लोज डोर. इन केस आपका सिलेबस 1 महीना पहले ख़त्म हो रहा है, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिविजन ज़रूर करो. द लास्ट थिंग, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ. आई नो इस जर्नी के प्रोसेस में ना ये चीज़ें रह जाती हैं, बट जब आपको लगने लगे ना कि you're feeling very drained, just prioritize these things. Spend time with your family. You know, it is okay to take a break. अगर आपसे नहीं हो रहा है, ब्रेक ले लो. अगर 10 दिन में एक बार हो भी गया तो क्या हो गया यार. You're a human. You're a pure soul. In this entire journey, my friends and my family has been so supportive. Like, जैसे मैंने बताया, I lost almost all my friends, but there were 2 of them who were there with me in this entire journey, and my family as well. So I'm so grateful. जब आपको लगने लगे ना things are not going right, just spend time with them. Spend few moments with them. You'll feel better. I would also like to talk about the power of manifestation, that it has worked for me. जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, उस दिन सुबह से लेके जिस टाइम तक मेरे हाथ में पेपर नहीं आया ना, आई वॉज जस्ट रिपीटिंग इट इन माई माइंड कि मुझे सब आता है, मुझे सब याद है, मैं क्लियर करने वाली हूँ नीट. 3 things आई वॉज कंटिन्यूसली रिपीटिंग इन माई माइंड, एंड मेरे को बिलीव था इन चीज़ों पे कि हाँ मैं क्लियर कर लूँगी. इन रियलिटी आई स्कोर्ड 546 जब लाइक उनकी आंसर की आई, विच वॉज लाइक ओके, लाइक इट इज़ डिसेंट. ऑब्वियसली जो हुआ इस बार नीट में, उसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो अलॉट नहीं हुआ, बट आई गॉट एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज. सो आई थिंक यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड मैनिफेस्ट दिस थिंग. आप विजुअलाइज करो कि हाँ आपका पेपर अच्छा हो रहा है और एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर आ रहे हो विद अ स्माइल. एंड अगर आप पूरे मन से इस चीज़ को विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, आई एम श्योर you will get success. In the last 1 month of my NEET preparation, I did meditation every day in the morning, and I used to manifest every day कि I will clear it, and I did. मैंने एक
डॉक्टर अक्षता सिंह की वीडियो में मैंने एक चीज़ सुनी थी कि अगर आपको लगता है ना 1% भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली दैट वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी. डू नॉट लूज होप एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस. ऑल द बेस्ट.